Good morning. We Good are morning. fine, ma'am. Okay, let everybody join. Let's give them 1 minute more and Good then we will morning, begin ma'am. our session. Good morning. Good morning to everyone. My dear children, welcome to your English class. J2, kindly change your name. I don't know who is attending the class. Write your name. The session is up near to completion and you don't know that you have to write your name. J2, kindly write your name. Otherwise, I will remove you from the class. Kindly do that. Be quick. A very good morning to everyone. Okay, let's begin our class with a prayer. Anybody who wants to say prayer, she can raise her hand and she can say the prayer for today. Okay, Saman Fatima. Okay, sure. Just raise your hand, Saman Fatima. Japneet, first hand was raised by Saman Fatima. Saman Fatima, first, tomorrow you will say the prayer, okay? Japneet, tomorrow you will say the prayer. Saman Fatima, everybody crisscross your legs. Keep your cameras on, hands on your lap. Relax yourself. Okay, Saman, I am going to unmute you. You can start your prayer. Okay, ma'am. Lord, we offer to you our class today. We pray that through your divine guidance, we would learn how to listen attentively to the inputs of our teacher. May we appreciate her effort in imparting her knowledge to us. Amen. Thank you. Thank you so much for the wonderful prayer. God bless you. And with this note, a very good morning to everyone sitting right there. I hope that you all are fine and doing great. Today, we are going to again touch the conjunctions. Okay, we have already discussed what are conjunctions last time. Okay, conjunction is the word which is used to connect or join words, clause, or sentences together. Okay, today I'm going to show you where yet is used, where because is used, and if the time will allow us, we will discuss with each other exercise. Okay, not your book exercise, but the exercise that I have saved for you for the practice purposes. Okay, so let's start without wasting our time. And if you have any confusion, anything that you want to ask, you are free to ask. Even up to 5, you can message me on my personal number too. Okay, today I'm going to send you the question answer of the lesson necklace. Kindly pen down on your notebook and start learning, because within 2 weeks I'm going to wind up your term 2 syllabus and we will start revision. 2 to 3 weeks. इसी बस इस January में whole February we will keep for the revision purpose. Okay, everything we will revise. Okay, now let's begin without wasting time. Okay, now conjunctions. These words connect word, phrases and class. और हमने पढ़ा था कि आप कैसे मेन conjunctions जो हम यूज करते हैं for, and, nor, but, or, yet, so लर्न कर सकते हैं या अपने माइंड में याद रख सकते हैं फन बॉयज के नेम से, और इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर. ओके, द मेन कंजक्शंस दैट आर यूज्ड in connecting the words are the sentences together. ये हमने already डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे for some examples. Okay, Sam drank some water for he was thirsty. I take milk and sugar in my tea. Okay, Sarah doesn't like apples, nor does she like pears. All the children want to eat pizza, but no one want to buy it. We could go to a zoo or
We could go to the theme park. The weather was cold and wet, yet we enjoyed very much. He is sick, so he is not going to the school. These are some examples of for and nor, but, or, yet not. The conjunctions that we used in collaborating the two words or in precising a long sentence into a small one. ठीक है, conjunctions are the part of speech that joins two words, phrases and sentences together. They are used to avoid making text seem like bullet point and to make the text flow. That means कि जब हम conjunctions use करते हैं तो हम एक पैराग्राफ बहुत आराम से लिख सकते हैं। और आप देखोगे जब भी आप पैराग्राफ राइटिंग करते हो वहां पे कितने सारे कंजक्शंस हम लोग यूज करते हैं। जो बुलेट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स को जब हम किसी चीज को लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए कंजक्शंस यूज करते हैं और फ्लो ऑफ अ टेक्स्ट। दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल आप लेसन भी पढ़ोगे तो अगर कंजक्शंस नहीं होते तो जो हमारे लेसन्स हैं, जो स्टोरीज हैं, वो बुलेट्स में होती एंड यू विल नॉट एंजॉय इट। It's always whenever you read a story, it's in a paragraph form, and when we read a story in a paragraph form we enjoy it. And points या bullets में कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, especially when we learn something. If you have an experience, whenever we learn the things that are represented in bullets, that remains in our mind for a longer period of time, because point 1 point 2 point 3 करके जब हम याद करते हैं किसी चीज को तो वो काफी देर तक हमें याद रहती है, इजिली याद भी हो जाती है। बट कंजक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि वो बुलेट्स को अवॉइड करते हैं और एक पैराग्राफ राइटिंग को प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। Some common conjunctions are and, but, or, so, yet, when, if, and, because. You know that. And now, usage with example from Gramaland. ये बहुत important हैं ये points। ध्यान से अब समझने की कोशिश करना, उसके बाद मुझे कोई नहीं बोलेगा मैम हमें समझ नहीं आया। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। See now. We use and to join words or group of words that are similar or when their meaning are related. Getting me? हम and वहां यूज करते हैं जहां पे words similar होते हैं, okay, that are similar or when their meaning are related. जब वो एक दूसरे से उनके मीनिंग रिलेटेड होते हैं तब हम and का यूज करते हैं। ये आप अपने दिमाग में ये रूल्स फिक्स कर लो, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग में। हम एंड कहाँ यूज करते हैं? हम एंड वहां यूज करते हैं जहां पे वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सिमिलर, जहां पे वो सेम हो। ओके, शी ईट्स एप्पल, मैंगो एंड बनाना। All the three belongs to the category of fruits, or fruits and vegetable, they are related to each other. ठीक है, फल और सब्जी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। टी एंड कॉफी ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो वहां पे जो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हो या दो चीजें सेम हो वहां पे एंड का यूज होता है। आई थिंक दैट आई एम क्लियर टू यू। वहां पे एंड का यूज होता है। आई विल सेंड दिस पीडीएफ टू यू, इट विल हेल्प यू आउट। I will buy fruit and vegetables because in your book I don't find anything interesting. आपकी बुक में कुछ भी मुझे I have read all that, but it is just for the reading purposes. आप वो अगर खुद भी पढ़ोगे सब coordinating conjunctions वो आपको खुद भी समझ आ जाएंगे, but जो important form है वो ये rules हैं, ये rules learn करना। हम and वहां यूज करते हैं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिमिलर हों या एक दूसरे से रिलेटेड हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट, या फ्रॉम द मार्केट भी आ सकता है। ठीक है, आई विल गो टू द मार्केट एंड बाय वेजिटेबल्स। ठीक है, दीज आर कनेक्टेड थिंग। कहाँ जा रहा, मैं मार्केट जा रहा हूँ और मैं वहां से क्या लाऊंगा? वेजिटेबल। आई लाइक एप्पल, मैंगो एंड ग्रेप्स द बेस्ट। तो देखो ये जो थ्री हैं, ये थ्री चीजें एक ही कैटेगरी फ्रूट से बिलोंग करती हैं। हम एंड यूज किया, मार्केट एंड वेजिटेबल को हमने रिलेट किया तो हमने एंड यूज किया, एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऑलरेडी रिलेटेड हैं ईच अदर से तो हमने एंड यूज किया। ओके,
सो यू हैव टू रिमेंबर इट, जहाँ पे सिमिलर कैटेगरी की बात हो रही हो, जैसे डॉग, कैट एंड पैविट. ओके, डॉग, कैट एंड पैविट आर पेट एनिमल्स. तो वे पेट एनिमल्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, सिमिलर है, तो एंड यूज हुआ. ठीक है. और आप ऐसे भी लिख सकते हो, goat and cow gives us milk, they have a same purpose, they are related to each other. Even उनके उनके जो characteristics हैं, उनके जो features हैं वो अलग हैं, but they are related to each other because they both give us milk. Okay, तो वहां पे जहां पे similarity हो वहां पे हम and use करते हैं, और जहां पे दो चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हो और वहां पे हम and use करते हैं. I think that this is clear to you. Okay, now next is, we use but to join words or group of words that are different or things that do not go together. हम but वहां पे use करते हैं. See now, we use but to join the words or group of words that are different. But हम वहां पे use करते हैं जहां पे group of words different होते हैं. Okay, और things that do not go together, वो चीजें जो एक दूसरे के साथ जाती नहीं है. आपका एग्जाम्पल से पता चलेगा कैसे. She was clever but lazy. देखो, clever and lazy two different characteristics हैं. ठीक है, अपोजिट है each other के. she, अगर हम बोलेंगे she is clever and intelligent. Okay, she is clever and tricky, तो ये मिलते जुलते हैं एक दूसरे से. But she is clever but lazy, that means कि वो तो चालाक है बट वो लेजी है. तो दो जो थिंग्स हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से, तो हमने बट का यूज किया. ओके, द फ्लैट इज बिग बट इट इजंट एवी. अगर ये सेम होते तो हम क्या बोलते, द फ्लैट इज बिग एंड इट्स एवी. दैट मीन्स ये सिमिलर था, एक तो बिग भी है और वेंटिलेशन भी अच्छी है. वेंटिलेशन द सेंस जहाँ पे हवा अंदर आ सके अच्छे से, उसी का मीनिंग होता है एरी. ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन अपोजिट है. द फ्लैट इज बिग, फ्लैट बिग तो है बट वहां पे वेंटिलेशन नहीं है, एरी नहीं है वो. इट इजंट एरी. तो बट वहां पे यूज होता है जहां पे ग्रुप वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर डिफरेंट. यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. वहां पे हम क्या यूज करते हैं, बट यूज करते हैं. ओके, तो कंट्रास्ट जहां पे हो ना, जहां पे कंट्रास्ट हो वहां पे बट यूज होता है. ओके, listen now. Next is, we use or कहाँ पे हम यूज करते हैं, conjunction or when we want to talk about choosing two alternatives. Okay, जब हम किसी को ऑप्शन देते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब हम किसी को चॉइस देते हैं तो यह ऑल्टरनेटिव्स भी बोलते हैं उसे. ये आपको ये वाला ड्रेस पसंद है या ये वाला ड्रेस पसंद है, तो या और. ओके, या का मतलब होता है और. तो हम वहां पे और यूज करते हैं जहां पे हम ऑप्शंस देते हैं या जहां पे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. डू यू लाइक वैनिला आइसक्रीम और चॉकलेट? डू यू ड्रिंक टी और कॉफी विद ब्रेकफास्ट? तो जहां पे ऑल्टरनेटिव्स हो वहां पे हम और यूज करते हैं. ध्यान से समझो इन चीजों को, यू विल बी द मास्टर ऑफ कंजंक्शंस. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सी नाउ, हम आर वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें टू ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस दिए गए हो, वहां पे आर यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज, वी यूज सो टू शो cause एंड रिजल्ट. हम सो कहाँ पे यूज करते हैं, cause एंड रिजल्ट शो करने के लिए. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. I didn't work very hard in the first term, so I didn't score high marks. Okay, cause क्या था, मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया. ओके, पर इसीलिए मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो सो यूज हुआ. अगर इसे मैं चेंज करती हूँ, नाउ सी नाउ, आई डिडंट वर्क वेरी हार्ड इन द फर्स्ट टर्म, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, बट आई गॉट फुल मार्क्स. बट, तो दो कंट्रास्ट को मैंने प्रेजेंट किया तो बट यूज हुआ. ध्यान से समझना, दो कंट्रास्ट को मैंने यूज किया तो बट यूज हुआ. बट यहाँ पे we are, when we express any sentence that shows cause and result relationship, वहां पे हम so यूज करते हैं. ओके, जहां पे cause and result हो वहां पे so यूज होता है,
और जहाँ पे कंट्रास्ट दो चीजें हो, ओके, वहां पे बट यूज होता है। कितने इजी है अगर आप रूल्स याद रखोगे तो। सी नाउ, फॉर एग्जाम्पल, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। For example, I didn't work very hard in the first term, so I didn't score high. मैंने ज़्यादा मेहनत की नहीं फर्स्ट टर्म में, तो मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए। Clear? When Savita is unwell, so she did not come to school. सरिता इज अनवेल, सरिता जो है वो बीमार है और वो स्कूल इसलिए नहीं आई है। तो हम सो, काज क्या है उसके स्कूल ना आने का, क्योंकि वो बीमार है तो वहां पे सो यूज होगा। और अगर आप इसको उल्टा करोगे तो आप यू कैन से सरिता इज अनवेल बट स्टिल शी केम टू स्कूल। तो वहां पे बट हुआ, क्यों? क्योंकि दो कंट्रास्ट थे। क्लियर? अब सी नो, वी यूज बिकॉज टू गिव अ रीजन और टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन, जब हमें किसी चीज का रीजन देना होता है। ओके, अभी सो एंड बिकॉज को आप मिक्स नहीं करोगे। सुनो, सो वहां पे यूज होता है जहां पे काज हो और उसका कुछ आउटकम हो, उस काज की वजह से पर्टिकुलर चीज नहीं हुई है। और बिकॉज वहां पे यूज होता है जहां पे हम रीजंस देते हैं या किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देते हैं। आई वेंट टू बेड अर्लियर बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। ओके, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। देखो, बिकॉज एंड सो में डिफरेंस देखो। बिकॉज का कोई रिजल्ट नहीं आया है। सी, बिकॉज इज सो सिंपल। बिकॉज का क्या हुआ है? बिकॉज में ओनली क्या चीज है कि आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि मैंने ये चीज इसलिए की क्योंकि, क्योंकि इसका ये रीजन था। ओके, क्योंकि इसका ये रीजन था इसलिए ये चीज हुई। बट सो में क्या है कि ये चीज इसलिए हुई क्योंकि उसका ये रिजल्ट हुआ। ठीक है, अगर वो बीमार हुआ तो वो स्कूल नहीं आ पाया। अगर वो अगर वो तेज दौड़ा, वो तेज नहीं दौड़ा इसलिए वो फर्स्ट नहीं आ पाया। ठीक है, तो ये वहां पे हम सो यूज करते हैं जब हम काज एंड रिजल्ट शो करते हैं। बट बिकॉज हम वहां यूज करते हैं जहां पे हम एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी चीज का। आई वेंट टू बेड अर्लियर, मैं जल्दी सोने चली गई, क्यों? बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं थक गई थी। ओके ओके, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, तो मैं थक गई थी। ऐसे वी कैन मेक यूज ऑफ बिकॉज इन सेवरल, we can make use of because in several sentences. Okay, uh, you can say I did I did not wake up earlier in the morning because I slept late at night. क्योंकि मैं रात को लेट सोई। तो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि पर्टिकुलर थिंग मैंने क्यों नहीं की है। ओके, तस्नीमा मिस्ड द बस बिकॉज शी वोक अप लेट। उसने अपनी बस मिस की क्योंकि वो लेट उठी। अगर यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, तस्नीमा मिस्ड हर बस, तस्नीमा वोक अप लेट सो शी मिस्ड हर बस, ये रिजल्ट शो कर रहा है, तो यहाँ पे सो यूज होगा। तस्नीमा मिस्ड हर बस, तस्लीमा वोक अप लेट सो शी मिस्ड हर बस। तो यहाँ पे हम रीजन दे रहे हैं कि वो लेट उठी इसलिए क्या हुआ कि उसने अपनी बस को मिस किया। बट यहाँ पे हम जहाँ पे बिकॉज यूज होता है वहां पे एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे? तस्नीम मिस्ड द बस बिकॉज शी वोक्ड अप लेट, क्योंकि वो लेट उठी इसलिए उसने अपनी बस मिस कर दी। We use yet, ये आप किसी ने क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपसे कहा था कि मैं आई विल गिव यू अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। We use yet to show two opposite things. अब देखो yet कहाँ यूज होता है? जहां पे हम two opposite things को शो करें। ओके ओके, आई एम क्लियर। ध्यान से, इसलिए मैं पास कर करके समझा रही हूँ ताकि आप एकदम से एक सीडी बनाओ अपने माइंड में और पूरे इन जो मैं रूल्स बता रही हूँ वो माइंड में रखो अपने। ओके, The athlete hurt his foot, yet he completed the race. Two opposite things को हम relate कर रहे हैं जब we use yet to show two opposite things. Okay, he
He started late, yet he finished his work on time. That means अगर आप देखोगे कि yet वहाँ पे यूज हो रहा है, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो रूल्स को, yet we are using at that place where we are showing the positive effect of the thing. Okay, समझ आ रही है? मेरे कहने का ये मतलब है कि हम कंट्रास्ट शो नहीं कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं कि अगर ये चीज उसके साथ नहीं हुई बट फिर भी उसने उस चीज को किया, जैसे एथलीट हर्ट हर हिज फुट, उसके पाँव में लगी थी, फिर भी उसने रेस को कंप्लीट किया, उसने अपना काम लेट स्टार्ट किया, ओके, फिर भी उसने अपना काम टाइम पे फिनिश किया। जब हम ऐसे वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे हम एक साइड से नेगेटिविटी शो करते हैं इन द सेंस कि कुछ वो सेंटेंसेस या वो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं जिसका रिजल्ट पॉजिटिव हो बट इनिशियली वो नेगेटिव हो, इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे लिखा गया एथलीट हर्ट हिज फुट, उसके फुट को लग गई लेकिन फिर भी उसने अपनी रेस कंप्लीट की, तो वहां पे हम येट का यूज करते हैं। क्लियर? He started late, yet he finishes his work on time. उसने अपना काम टाइम पे खत्म किया। Clear? Next is we use if to join two sentences where one sentence is condition. One sentence is condition for the other. हम if वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और वन सेंटेंस इज कंडीशन ऑफ द अदर्स। अगर आपने ऐसे किया तो ऐसा होगा, तो अगर इफ होता है इफ आई एम लेट आई विल मिस द फिल्म, अगर मैं लेट हो गई तो मैं फिल्म को मिस कर दूंगी। इफ सीमा प्ले वेल टुडे द टीम विन, अगर सीमा ने अच्छा खेला आज तो हमारी जो टीम है वो विन करेगी। दैट मीन्स टू सी नाउ we use if to join two sentences where one sentence is the condition for the other. ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। if we will work hard we will get good marks. Okay, if we will finish our work on time we will get a candy from my mother. Okay, from our mother, sorry, from our mother. Okay, तो कंडीशन है इसमें, जहां हम कंडीशन शो करते हैं वहां पे if यूज होता है। We use when to join two sentences when the two actions or state are related in time. We use when to join two sentences when the two actions or states are related in time. When I see my friend, I say hello to him. That means कि जब हम किसी कोई एक्शन तब करते हैं जब उस पर्टिकुलर पर्सन को देखते हैं या पर्टिकुलर टाइम आता है, तो दोनों चीजें जब हम सबऑर्डिनेटली करते हैं तो उसे वहां पे when यूज करते हैं। When I was born, my father was very happy. मैं पैदा हुआ मेरा फादर बहुत हैप्पी थे। ओके, तो when I see my friend, I say hello to them. I will get ready when the cab is here. दो चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। देखो, मैं तैयार हो जाऊंगी कब? जब कैब आएगी हमें लेने के लिए। ओके, तो these are the rules for your punctuation. Clear? If you will remember these rules, you will be able to put the appropriate punctuation while framing the sentences. You will not find any difficulty in it. You just have to memorize the rules. Okay? और इसे ध्यान से आप पढ़ो, आप देखो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। इसमें हर एक चीज डिटेल में दी गई है। येट का यूज होता है, बिकॉज का यूज होता है, सो का यूज होता है, इफ का यूज होता है। नो पोजीशन ऑफ कंजक्शंस, कुछ कंजक्शंस ऐसी हैं जो सेंटेंस के बीचों बीच नहीं लगती, हम उन्हें चेंज भी करके लगा सकते हैं। सम कंजक्शंस इफ, बिकॉज एंड व्हेन can be placed at different positions within a sentence. I was tired because I had run 5 miles in the morning. Okay, तो ये explanation दे रहा है ना, ये सेंटर में आ गया। ओके, कंजक्शंस दैट मींस इसने टू सेंटेंसेस को ज्वाइन किया। आई वाज टायर्ड, रीजन क्या था? क्योंकि आई हैड रन 5 miles in the morning because, अब देखो बिकॉज फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द कंजक्शन में आ रहा है। ओके, because I had run 5 miles in the morning, I was tired. Okay,
तो यहाँ पे लिखा गया है कि some conjunctions if, because and when can be placed in different positions within the sentence. हम because, if and when को सेंटेंस के किसी भी पोजीशन में लोकेट करके, देखो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, मीनिंग बिल्कुल सेम है, बट कंजक्शन डिफरेंट जगह पे यूज हुई है. इफ दे कॉल टू अस, if they call to ask, I will answer the question. I will answer the question if they call to ask. Okay, these are all about your conjunctions. Just go through your book, read it. If you find any difficulty, you can ask me, but kindly learn these important conjunction rules, and you will be able to understand where you have to use the right form of conjunction. Now I am coming back to you. If you have any problem, you can ask me. After that, I am sending you this PDF with book exercise. You not this book exercise, practice exercise. You do it and you send it to me. Okay, and let me check whether you have done it right or wrong. Okay, class. Okay, Hina. Yes, Hina. Ma'am, I didn't understand where to use if. Yes, बच्चे. We have to use if. Yes, ma'am. ओके बेटा, इफ हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम खुद ही पहले कंडीशन रखते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ये चीज हो जाएगी. इफ आई विल नॉट वर्क हार्ड, आई विल नॉट गेट गुड मार्क्स. इफ आई विल wake up late in the morning, I will miss the bus. ठीक है, तो हम खुद की कंडीशंस को अज्यूम करके रिजल्ट बताते हैं, तो वहां पे हम इफ का यूज करते हैं. गेटिंग मी? Yes, ma'am. गेटिंग मी? जहां पे हम खुद ही कंडीशन रखते हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो इफ आई विल टेल लाई टू माय मदर, आई विल बी कॉट. ठीक है, अगर मैं अपनी मम्मा से झूठ बोलूंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी. तो आप खुद ही कंडीशन रख रहे हो, खुद ही आंसर बता रहे हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो वहां पे हम इफ यूज करते हैं. ओके ओके मैम. मैम और ओके आप ना? बोल ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसका मतलब क्या होगा जी मैम? यस बेटा. ना बेटा स्पीक लाउडर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरे पास. Ma'am, you said that what is the ma'am I said that what is the meaning of contrast? कंट्रास्ट इन द सेंस कि जब टू थिंग्स एक दूसरे से मिलती ना हो, एंटी हो, तो वो कंट्रास्ट हो जाता है, उसे कंट्रास्ट बोलते हैं. ओके Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, वेलकम बेटा. यस भूमिका Gloria. I am also going to send this PDF to you. You can check it. I will send it in your Google Classroom. Yes, Bhumika. Be Yes, quick. ma'am. Others are waiting. हाँ बच्चे. मैम आपने सी फीवर पोएम के क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए हैं हमको? ना बेटा, आज मैं नेकलेस की भेजूंगी, कल सी फीवर के भेज दूंगी. ओके ओके मैम. ओके बेटा. थैंक यू. वेलकम मोस्ट वेलकम. यस परिणिका. Yes, ma'am. यस बेटा. Ma'am, where we use though, although it this. Beta, see, when we though he is well, yet he wants to play. Okay, though he is unwell, though हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम कोई रीजन देते हैं, इन द सेंस कि हम बोलते हैं कि वो ठीक नहीं है फिर भी वो खेलना चाहता है. जैसे बच्चों के लिए बोलते हैं, देखो ये ठीक नहीं है फिर भी ये खेलना चाहता है. ओके, though he is though for example you can say though he is small, yet he wants to do big things. ठीक है, तो जहां पे हम रीजन देते हैं कि इस पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर चीज इस पोजीशन में है, बट या दो या yet लगाते हैं हम, फिर भी वो ये काम करना चाहती है, तो वहां पे दो यूज होता है. ऑल दो यूज होता है, देखो वहां पे लिखा हुआ है, although he is very old, he goes jogging every morning. Okay, although and though they are connected to each other. Okay, although Yes. and though they are connected to each other. अगर आप सेंटेंस में देखोगे तो देखो मीनिंग सेम निकल रहा है, मीनिंग सेम निकल रहा है. देखो अगर हम देखेंगे 6th सेंटेंस ऑलवेज रिमेंबर का, though he is unwell,
yet he wants to play. ठीक है, वो ठीक नहीं है फिर भी वो खेलना चाहता है। क्लियर? पढ़ने का। उसके बाद ऊपर देखिए, although he is very old, he goes jogging every morning. तो ये दोनों रिलेटेड टर्म्स है, मिलती जुलती हैं। यू कैन यूज दो, यू कैन यूज ऑल दो। कंजक्शंस के कुछ जो वर्ड्स होते हैं दैट आर पर्टिकुलर, जैसे जो मैंने आपको पढ़ाया ना, एंड, फॉर, और बेसिकली ज्यादा से ज्यादा यही कंजक्शन जो आपने आज रूल्स पढ़े, यही कंजक्शन हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि येट भी बहुत कम यूज होता है, देखा Yes, है? ma'am. येट हम बहुत कम यूज करते हैं। जो मैंने आपको जितने भी आज पढ़ाए ना रूल्स, वो रूल्स में जितने भी कंजक्शंस आते हैं, ये कंजक्शंस मेनली हम यूज करते हैं अपने राइटिंग में, अपने कन्वर्सेशन में। जो बाकी जो बचे हुए ये है, हाँ मैंने आपको एक ये वो चीज पढ़ानी है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी कि सिंस, फॉर, फ्रॉम कहाँ यूज होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे ये जो कंजक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, ये हम मोस्टली यूज करते हैं।